world we live in is a world of opportunities and diversity that seems larger now than ever. In our fast-paced societies, we need to adapt to changes rapidly. In today's world, transparency, protection and support has become special commodities. And this can only come from someone with experience, someone who is deeply rooted to the soil, like Vedant Asset, which goes back to our experience in financial distribution from 2002 onwards, the year in which the promoter of the company started his journey into a foresighted and a successful business future. We at Vedant Asset stands for stability and process-driven approach because we firmly believe these two ingredients are very important and are the key drivers for the growth of any company. In our 2 decades of experience in financial distribution and mutual funds, we have helped our clients grow together with us. An experience that strengthens our competence and that put our clients in safe and secure hands. As an organization, we believe we must progress and create value for our company, partners, and employees. Our aim is to create robust B2B business model, and hence for that we have created robust infrastructure, processes, and technology to achieve highest level of transparent financial advice. In today's world, there is only one approach to sustainable wealth creation, and that is process-driven approach. And at Vedant Assets, we follow processes at every steps of our organization. We put great value and concern on our investment policies, and we see customer-first approach as a part of our investment responsibility. We also believe in taking financial products to the rural and semi-urban India as a part of our social responsibility. And our motto is to make every Indian participate in the growth cycle of our economy. We at Vedant Asset consider the value of our distribution partners carefully. Our network is our net worth. Thus, this enables us to serve our customers best both by technology and by personal support. Our employees are where our customers are. A diversity in which we live arrange for our customers more than any other distribution house. We want to make a happy and a meaningful investment for each one of our clients. We are Vedant Asset. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड फेस टू फेस सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, ऐसे फेस टू फेस सीरीज में हम ऐसी कंपनीज आपको प्रस्तुत करते हैं जो इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स होते हैं और जो आने वाले साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन फाइनेंशियली और बिजनेस वाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। और आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है वेदांत एसेट्स लिमिटेड। एंड हमारा प्रिविलेज है कि टॉप मैनेजमेंट द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ललित त्रिपाठी हमारे साथ है। ललित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम और हमारे शो में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Avinash ji, for inviting me. It's a pleasure and honor, and thank you so much for being in Profit Mart today. ललित जी, मेरा पहला सवाल आपको ये है कि हमको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दीजिए। ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया, आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए, और ये बिजनेस एक्चुअली कौन कौन से सेगमेंट्स को केटर करता है, और थोड़ी बहुत आपकी जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, स्पेसिफिकली विच सेगमेंट ऑफ द मार्केट यू केटर, और कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज में वेदांत थोड़ा सा ज्योग्राफिकली स्ट्रांग है, इसके बारे में थोड़ा कलर दे दीजिए सो दैट वी कैन बिगिन। अविनाश जी, ऐसा है कि बिगिन विद आई स्टार्टेड माई सेल्फ एज अ बिजनेस पार्टनर और आईसीआईसीआई बैंक का 2002 से। तो जब हमारे शहर में आईसीआईसीआई बैंक आए थे तो हमने उनके बिजनेस पार्टनर के तौर पे शुरू किया था लाइबिलिटीज के लिए मोबिलाइजेशन करने के लिए, और उसके बाद उनके लोन प्रोडक्ट्स से जिसमें वो डीएसएस बोल के आते थे, डीएसए फॉर वेरियस लोन प्रोडक्ट्स। तो हमने 2002 से 2007 तक आई वाज
ग्रॉसली एंगेज विद आईसीआईसीआई बैंक एज ए बिजनेस पार्टनर। वी हैड हम लोगों ने काफी बढ़िया वॉल्यूम्स खड़े क्रिएट किए थे, कुछ ऐसे माइलस्टोन्स बनाए थे जो कि अपने आप में काफी बढ़िया नंबर्स थे इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, लाइबिलिटीज हो, एसेट प्रोडक्ट्स हो, फिर उसके बाद इंश्योरेंस रहा, म्यूचुअल फंड्स रहे। तो हम आईसीआईसीआई बैंक के साथ यूनिफॉर्मली 2002 से 7 तक इन्वॉल्व रहे। 2007 में आई मूव टू म्यूचुअल फंड बिजनेस, जहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया एज एन इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर। और वो काम मैंने 2007 में शुरू की एग्रेसिवली आफ्टर लिविंग साइट्स। एंड उसके बाद हमने सब्सटैंशियली 3-4 साल में करीब काफी बढ़िया एयूएम खड़ा कर लिया था इन दिस मार्केट, स्पेशली इन द इंस्टीट्यूशनल साइड। रिटेल भी साथ में थे, इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ में थे, कई सारे इंस्टीट्यूशन रिटेल मैनेजमेंट और रिटेल फंड्स को मैनेज करना। वी केम अप विद अ मैगजीन आल्सो इन 2008 during the financial crisis, publishing about the financials magazines which was sold in the market in Jharkhand and Bihar, which covered the complete financial aspects. और म्यूचुअल फंड में फोकस रहे, उसकी वजह से हमें 2016 में सीएनबीसी और यूटीआई टीवी 18 की तरफ से बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर अपकमिंग ईस्ट का अवार्ड मिला। 17 में फिर मिला मुझे, और 19 में हॉल ऑफ फेम, जो कि फाइनली एक काफी प्रेस्टिजियस होता है सीएनबीसी टीवी 18 की अवार्ड, वो मुझे मिली फॉर दिस रीजन। बट जब मैं म्यूचुअल फंड कर रहा था तो मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में डिस्ट्रप्शंस बहुत आ रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जहां मैं रूरल साइड में प्रेजेंस बना सकूं और रूरल मार्केट को कैटर कर सकूं। तो मुझे लगा सिर्फ म्यूचुअल फंड करूंगा तो उसमें प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, रेवेन्यू नहीं दिख रहा था कि मैं पार्टनर को सस्टेन कर पाऊंगा रूरल साइड में, बिकॉज वॉल्यूम कम है, बिजनेस कम होगा और एक पार्टनर को सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो 19 में मैंने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सीएसपी जिसको बोलते हैं, जिसमें मैं बैंकों के साथ, बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण बैंक के साथ टाई अप किया कि कस्टमर सर्विस पॉइंट्स बनाते हैं जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज को हम ले चलते हैं। और ये 19 के समय में हमने शुरू किया, 19 के आसपास शुरू किया, और 20 में आपको पता है कोविड आ गया था। बट फॉर्चुनेटली हमने जो बेस बनाया था पिछले 19 और 20 के शुरुआत में, वो काफी काम है। जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ और जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज आ रही थी, तो हमारे ये सेंटर्स बहुत सारे एक्टिव रहे और बहुत से लोगों को पैसा निकालना था और ट्रांजेक्शन्स करने थे। तो ये सारे सेंटर्स जो रिमोटेस्ट एरिया में थे, तो वो एक्टिव रहे, एंड वी डिड सम गुड बिजनेस ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, क्योंकि हमारे कस्टमर सर्विस पॉइंट खुले रहते थे राउंड द क्लॉक फाइनेंशियल। फिर हमें लगा कि नहीं, इनको और किस तरह से ये सेंटर्स को अपग्रेड किया जाए, कैसे इसके बिजनेस को बढ़ाया जाए, अपने पार्टनर्स का रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो करते करते हम लोगों ने इंश्योरेंस की ब्रोकिंग फर्म शुरू की कि इंश्योरेंस को ले चलते हैं, जो कि एक अलग नाम से है, वेदांत इंश्योरेंस ब्रोकिंग करके एक एंटिटी शुरू की, वहां पे हम वो लेके गए। फिर हमें लगा लोन्स के लिए नीड्स आ रहे थे, तो लोन्स के लिए हम लोगों ने एक अलग वर्टिकल शुरू किया। वी हैव टाइड अप विद ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स फॉर लोन्स, और भी अदर सर्विसेज जैसे पैन कार्ड सर्विस है, फिर आपके टिकटिंग सर्विस है, बिकॉज पार्टनर्स को रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये फोकस मेरे कि एक पार्टनर के सब, एक पार्टनर को कैसे, छोटी जगहों के पार्टनर को क्या क्या जरूरतें हो सकती है, उसके हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट को इवॉल्व किया और हम उनको लेके गए। और आज की तारीख में हमारे पास में झारखंड में हमारे जो सेंटर्स चलते हैं, उसमें मोस्टली वुमेन फोक्स हैं। महिलाओं को हम लोगों ने लिया जो ट्रेंड हैं, जो कंप्यूटर लिटरेट है, और उनको हम लोगों ने साथ में अपने साथ ऑनबोर्ड किया, उनकी ट्रेनिंग की, उनको कंप्यूटर से फ्रेंडली किया है। और आज वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मॉडल पे काफी लोग हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, एंड दे आर एबल टू मेंटेन अ गुड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। एंड दिस मॉडल जो पार्टनर मॉडल है, विच इज एबल टू डिलीवर इन अ वेरी गुड वे। So going forward, it was started from mutual fund and it has now completed the whole cycle of financial distribution. जो कंप्लीट साइकिल, सब प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास है, बैंकिंग है, बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पार्टनर्स के पास में। तो हम जिसको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बोलते हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन्स, वो हैं हमारे पास में। डीमैट सर्विसेज है हमारे पास में। हम टिकटिंग का सर्विस और पैन कार्ड एंड और भी जो पेमेंट सर्विसेज हैं वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हुआ हमारा। उसके बाद हमें लगा कि ये तो पार्टनर मॉडल, तो हमें लगा कि डिजिटल पेमेंट्स अभी बहुत इवॉल्व हो रहा है। तो हम लोगों ने वेदांत पे की बोल के कंपनी शुरू की, जिसमें हम डिजिटल पेमेंट, जिसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम, हमारा खुद का माइक्रो एटीएम है, और ये सब हम लोगों ने एक बैंक के साथ लेके इंटीग्रेट किया, और ये सॉफ्टवेयर हम लेके अब बाजार में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। वेदांत पे इज लाइव, वी आर एक्टिवेटेड विद द पार्टनर जो सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं।
उस प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड भी होता है, इंश्योरेंस भी है, लोन्स भी है, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल वेदांत पे बोल के। इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ B2C प्लेटफॉर्म, इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट और एक सवाल इनफैक्ट ललित जी जो मुझे आपसे पूछना है, मेरे को बताइए एकदम सिंपल टर्म्स में कि आपका फ्रेंचाइजी नेटवर्क, मार्केटिंग नेटवर्क ज्यादातर झारखंड बिहार में ही है, और यू हैव एनी प्लान्स टू मूव आउट इन सम अदर स्टेट्स ऑल्सो, यानी वहां पे भी आपके क्या प्लान्स है कि आने वाले सालों में आप अपना जोग्राफिकल रीच कैसे बढ़ाना चाहते हैं? As I speak to you today, in fact, tomorrow is a day where we are starting our Odisha operations. तो हमारी उड़ीसा में टाइप्स हो गए हैं, बैंकॉक के साथ टाइप्स हो गए हैं, हम उड़ीसा में ऑफिस सेटअप कर चुके हैं। सो वी आर एंटरिंग इन उड़ीसा मार्केट टुमारो। बिहार भी है, मध्य प्रदेश वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंदौर, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो आवर रीच इज फर्स्ट टू कवर अप द कंप्लीट इंटायर ईस्टर्न पार्ट एंड देन टू गो इनटू द रेस्ट पार्ट। सो अभी हम उसके लिए वही लगे हैं। We have a setup here because the maximum transaction which is such kind of volume happen in this densely populated state, which is Jharkhand, Bihar, Odisha, Bengal, Chhattisgarh and UP, Eastern UP and Madhya Pradesh obviously. So ये जोन पैन इंडिया भी हमें लगता है कि हम कुछ समय के बाद पैन इंडिया प्रेजेंस बना पाएंगे। बट टू राइट नाउ टू बी वेरी प्रिसाइज, हम अभी ईस्टर्न इंडिया को फोकस करके चल रहे हैं। एक टेरिटरी को हम कवर अप करना चाह रहे हैं कि ईस्टर्न इंडिया को हम कवर अप कर ले। बिल्कुल। ललित जी, मेरे को और एक सवाल पूछना है, और ये है कि जो प्रोडक्ट्स आपने हमको बताया, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, लोन्स हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गए, काफी प्रोडक्ट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके हिसाब से जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन विद इन दिस बास्केट विच आर द प्रोडक्ट्स विच यू फील कैन ग्रो फास्टर, लाइक अगले 3-5 साल में आपका बेस छोटा ही है, ग्रोथ भी बड़े नंबर्स में आएगा, परसेंटेज भी अच्छा होगा, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट सेगमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है या लोन्स है, कौन से सेगमेंट में आप ज्यादा फोकस कर रहे हो? क्योंकि देखिए मार्जिन्स तो आपके सिलेक्ट प्रोडक्ट्स पे अलग अलग होंगे, तो विच प्रोडक्ट्स आर यू फोकसिंग मोर एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड इन द नियर टर्म? To be very honest, loans is a one product which is going up very aggressive. एंड एज अ कंपनी कार्तिक क्रेडिट वाज हैज अ गुड नंबर्स। इसलिए हम देखे होंगे कि हम लोगों ने 28 फरवरी को वेदांत एसेट हैज टेकन ओवर कार्तिक क्रेडिट कंप्लीटली एंड इट्स नॉट सब्सिडरी ऑफ वेदांत एसेट। वो एक फील्ड ऐसा है जो काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो हमें लगा कि वहाँ काफी ग्रोथ है, काफी अपॉर्चुनिटी है। और अभी करीब हम लोगों ने अभी नई कार्तिक क्रेडिट इज ऑलमोस्ट अ 1 ईयर ओल्ड कंपनी, बट अभी फिलहाल 5 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट मंथली हम लोग बिजनेस लोन और पर्सनल लोन्स पे कर रहे हैं। सो दैट इज एन एरिया, इसलिए हम लोगों ने कार्तिक क्रेडिट को रखा है कि वेदांत एसेट ने उसको, इट इज नॉट सब्सिडरी, टेकन ओवर कार्तिक क्रेडिट इन द मंथ ऑफ फरवरी, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड वो एक अच्छा रेवेन्यू हमें दिख रहा है वहां से आते हुए। और ये जो डिजिटल पेमेंट है हमारा वेदांत पे है, ये मुझे काफी हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट दिख रहा है, बिकॉज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन बिहार और झारखंड और यूपी का अगर आप मिला लीजिए तो काफी बड़ा वॉल्यूम, एज यू आर मस्ट बी अवेयर कि डिजिटल ट्रांजेक्शन अब बढ़ गए हैं। So we are very much positive on this to Vedant Pay and Loans Pay, which is a huge revenue generating business for us in next couple of years. ललित जी, अभी कोविड खत्म हो चुका है, नॉर्मल सी आ चुकी है, तो आपके हिसाब से ऑन ग्राउंड एज ऑफ नाउ आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ असेसमेंट फॉर करंट ईयर, दैट इज FY24 के लिए आपका क्या असेसमेंट है, विदाउट पुटिंग नंबर्स? अगर आप हमको बता दें कि ग्राउंड लेवल पे आपको डिमांड सिनारियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट करते हैं, वो सिनारियो कैसे लग रहा है? आई मीन कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट और तेजी से ग्रो करेगा? क्योंकि देखिए बहुत सारे हेडविंड्स है, जैसे कि अभी मानसून के बारे में लोग कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा पिछले साल के हिसाब से कमजोर होगा, प्लस जो भी ग्लोबल हेडविंड्स तो चल ही रहे हैं, बट एज फार एज आवर प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ फॉर FY24, दैट इज फॉर द कमिंग ईयर? So let me tell you one thing, अविनाश जी, की लोकल मार्केट, जो रूरल मार्केट ना, बहुत ग्लोबल मार्केट से कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं, वहाँ का अपनी एक अलग इकोनॉमी होती है, अलग स्केल होता है। ठीक है, डू दे गेट अफेक्टेड विद टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वाइज, बट वहाँ पे अपना एक निश मार्केट है, वो एकदम अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। सो हमें लग रहा है विल ग्रो विद अ वेरी वेरी स्टडी ग्रोथ। इस साल हम मतलब ऑलमोस्ट नंबर्स की बात नहीं करें तो वी सी अ ह्यूज ग्रोथ इन आवर रेवेन्यू दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज वॉल्यूम है, मार्केट से डिमांड्स बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। मतलब डिमांड्स फॉर लोन्स, डिमांड फॉर इंश्योरेंस बड़ा है, डिमांड फॉर
ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट्स वेरी वेरी हाई, मतलब अभी भी वॉल्यूम्स बहुत हाई है। द काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, बिकॉज ट्रांजेक्शन रूरल एरियाज में होते ही होते हैं। आपको इतने सारे सब्सिडीज आते हैं, इतने सारे पैसे आते हैं गवर्नमेंट से, वो ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ट्रांजेक्शन होते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम। तो हमें नहीं लगता कि ये मार्केट बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट से कंसर्न है। अगर होगा फर्क पड़ेगा तो थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शनल फर्क पड़ेगा, लेकिन यस देयर इज अ मार्केट विच इज देयर एंड विच इज ग्रोइंग एट मच मच फास्टर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। ओके। ललित जी, अभी आपने कहा कि आप झारखंड, अभी उड़ीसा में आप एंट्री कर रहे हो, तो मुझे बताइए कि ललित जी देखिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ यूएसपी विच वेदांत एसेट हैज क्रिएटेड फॉर इट्स कस्टमर्स, लाइक ऐसा क्या डिफरेंशिएट आपने किया है? क्योंकि देखिए फाइनेंस कंपनीज तो बहुत सारी है, लेकिन आपका सर्विस, आपका एग्जीक्यूशन, मेरे ख्याल से मुझे ये आपको पूछना है, क्योंकि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट आवर कंपनी इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट विद अदर प्लेयर्स विच आल्सो ऑपरेट इन द सेम ज्योग्राफी? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हमारे साथ में हमारे पार्टनर्स हमारे स्ट्रेंथ है, मतलब हमारा जो नेटवर्क है ना, वही हमारा नेटवर्क है। लिटरल सेंस में हमारा नेटवर्क इज आवर नेटवर्क है एक्चुअली। ये देखा जाए तो हमारे से जितने पार्टनर्स जुड़ रहे हैं ना, वो बहुत सीरियस पार्टनर्स हैं। हम उनका हैंड होल्ड करके ना, क्योंकि हमारी रेवेन्यू उनके अर्निंग्स पे बने हुए हैं, वी आर एबल टू जनरेट मच मच मोर। सो माय पार्टनर्स आर मेकिंग, सपोज सम पार्टनर्स आर मेकिंग 50-30,000 और 50,000 रुपीज। तो हम चाह रहे हैं कि वो लाख रुपए तक कैसे पहुंचे। रूरल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों में तो बहुत आराम से बनता है, बट वो चीजों में वो हम उनका हैंडल करके ट्रेन कर रहे हैं, उनको साथ लेके चल, और वो हो रहा है। बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि हमारे पार्टनर्स अब आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, वो आगे एग्रेसिवली जा रहे हैं। तो हमारा जो यूएसपी है, हम पार्टनर ओरिएंटेड जो है ना, वो हमारा यूएसपी है। आप बिलीव करिए, हमारे एक पार्टनर के बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक आया था, तो हम दंग रह गए। तो वो लोकली हड़िया बेचती थी, और अब वो हमारी लोकल ड्रिंक होता है, एंड शी वॉज एजुकेटेड क्वालिफाइड, मतलब ग्रेजुएट थी। और अब उसको हम लोगों ने पार्टनर बना के ट्रेन किया। तो जब ट्रेनिंग देने गया तो उसको हमारे साथ पार्टनर बनी, वो 25,000 रुपये महीना कमाना शुरू की। So people said, can look such people can even make money. I mean so remotest part जो ये मतलब एक लोकल लेवल पे थी, तो वो हम लोग के साथ जुड़ने के बाद बहुत फर्क पड़ा है। एंड आर यूएसपी दैट ऑल आवर पार्टनर्स आर कमिटेड, दे डोंट नीड एनीवन एल्स, बिकॉज इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट जहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी आप ले गए और कोई भी टेक्नोलॉजी पे चला गया। इट इज लाइक अ बैलेंस हाइब्रिड मॉडल। तो यहाँ पे ब्रिक एंड मोटर भी है, टेक्नोलॉजी इज एनेबलर। ये दोनों को मिला के जो हम काम कर रहे हैं ना, इनेबलिंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफी बढ़िया चीज है। So our business is not totally dependent on technology or either on brick and mortar. It's a hybrid model of technology where technology actually acts like an enabler. तो वही काम है। तो ये हमारे लिए यूएसपी कि हमारे पार्टनर्स पर लॉयल हैं, साथ जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ललित जी, थोड़ा सा आइडिया अगर आप हमको दे दें कि ये जो आपके रिटेल पार्टनर्स है, जो आप बता रहे हैं कि आपका स्ट्रेंथ है, तो मोटा मोटी सर ये नेटवर्क थोड़ा सा कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी दो। हमारे अंदर टोटल सर ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ आया है लास्ट ईयर के हिसाब से। सो लास्ट ईयर से हम 50% एड ऑन हुए हैं, क्योंकि हमारा नया टेरिटरी में हम एंटर कर रहे हैं उड़ीसा में इस साल के शुरू में, फाइनेंशियल ईयर के। और एक दो टेरिटरीज और हम लोग जा रहे हैं। तो हम डेफिनेटली, हमें लगता है कि हम कम से कम अभी जहाँ पे हैं वहां से 200 से 300% ज्यादा रहेंगे पार्टनर्स के नंबर्स पे। बट लास्ट ईयर की कंपेरेटिवली हम लोग का जो ग्रोथ हुआ है, वी हैड टोटल पार्टनर साइज वाज विच वेदांत पे और ये लेके आप हमारे बीसी बिजनेस और सब ले लीजिए, अभी हम करीब 400-350 के आसपास थे। तो अभी हम लोग करीब करीब 1200 से 1500 के बीच में है। लाइक टू बी वेरी प्रिसाइज 1400 के आसपास। ललित जी, दूसरी एक बात जो ये रिटेल पार्टनर्स के बारे में मुझे पूछनी है कि जब आप कोई रिटेल पार्टनर लेते हो अपने नेटवर्क में, तो नॉर्मल केवाईसी आप क्या करते हो, यानी किस प्रकार का बंदा या किस प्रकार का एसोसिएट आप आइडेंटिफाई करते हो? क्योंकि किसी ही इज योर ब्रांड एम्बेसडर, वो आपका प्रोडक्ट एक्चुअली बेचता है, उसके बाद आपको बिजनेस मिलता है। तो व्हाट इज द नॉर्मल केवाईसी व्हेन यू सिलेक्ट काइंड ऑफ एसोसिएट हु एक्चुअली जॉइंस हैंड्स विद वेदांत? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम रूरल साइड में करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा अलग होता है। हम पहले एरिया आइडेंटिफाई करते हैं। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद हम वहाँ पे जो ट्रेंड है, स्किल्ड हैं, जो लाइवलीहुड प्रमोशन काउंसिल से ट्रेंड है, उनको लेते हैं। उनका ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करते हैं। ड्यू डिलिजेंस की ये होता है कि राइट फ्रॉम देयर वेरिफिकेशन, देयर इंटरेस्ट, देयर पुलिस वेरिफिकेशंस, सो वी कीप एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको ऑनबोर्ड करते हैं। बिकॉज वो हमारे बैंक के साथ भी जुड़ रहा है, जो अगर वो बैंकिंग पार्टनर है तो बैंक के कुछ ड्यू डिलिजेंस नॉर्म्स होते हैं।
तो ड्यू डिलिजेंस होते हैं, वो करने के बाद ही फिर वो बैंकिंग पार्टनर बनता है। किसी भी बैंक का सीएसपी बनने के कुछ रूल्स रेगुलेशन से नॉर्म्स हैं। वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होने के बाद वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, आदमी जाके वहाँ वेरीफाई करता है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं। वी टेक सम रेफरेंस, रेफरल चेक्स वगैरह करने के बाद फिर हम उसको ऑन बोर्ड करते हैं। तो जो केवाईसी का नॉर्म्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ताकि किसी तरह के कोई गलत मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं हो। So we are very particular about appointing our partners. So even rather we go for all kinds of verification. KYC तो होता ही है, बट हम उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स भी उसका मंगाते हैं, और सारे तरह के रिपोर्ट्स रखते हैं, ताकि उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन हो, कि किसी तरह का कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उसका खराब नहीं हो, या किसी तरह का फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में वो ना पाया जाए। इसका विशेष ध्यान हम लोग देते हैं। बिल्कुल। ललित जी, अभी मेरे को थोड़ा सा फिनेंशियल डेटा पॉइंट बताइए कि हम बिजनेस फाइनेंस का करते हैं, तो इसमें कोई एसेट क्वालिटी का इशू या कोई डिफॉल्ट का इशू आता है, या आपका बिजनेस वैसे रिलेटिवली सेफ है? यहाँ पे डिफॉल्ट या कोई कस्टमर पैसा टाइम पे देता नहीं, ऐसा कोई इवेंट हमारी कंपनी में हुआ है या हो सकता है? या हमारा बिजनेस बिल्कुल ही वैसे रिलेटिवली सेफ है क्योंकि हम इंटरमीडिएट है? तो इसके बारे में बताइए। और दूसरी बात मैं जानना चाहता था कि आपका सितंबर का नंबर तो आ गया है, नॉर्मली इज देयर सम सीजनैलिटी? सेकंड हाफ नॉर्मली फर्स्ट हाफ के मुकाबले में आपके कंपनी के लिए अच्छा होता है? आई मीन, आई जस्ट वांटेड टू नो द ट्रेंड, वेदर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इज स्प्लिट इक्वली, और वेदर सेकंड हाफ में आपको ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा प्रॉफिट्स आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहला चीज जो आपने पूछा कि हम लोग जो है, अविनाश जी, मैं एक सेकंड बस ये बोल रहा था कि मेरे को ये लगा कि पहला सवाल जो आपने मुझसे पूछा, इट वाज रिलेटेड टू, कैन यू कम बैक ऑन दैट अविनाश जी एक बार? इनफैक्ट आई वाज आस्किंग टू यू ललित जी कि हमारे जैसे कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है, तो उसके लिए यस, एसेट क्वालिटी यस, का यस, यस, इशू होता है, आई आई इसके जस्ट बारे आई में जस्ट बताइए। गॉट दैट। हाँ, मैं ये बोला था कि वी आर मोस्टली द एग्रीगेटर फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। सो हम एग्रीगेटर का काम करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर कहीं पे भी नहीं है। ओके, So as बिल्कुल। an aggregator, we follow the due diligence of all the banks and all the processes of all this, और उसी बेसिस पे हम काम करते हैं। वी आर मोस्टली एग्रीगेटर्स फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स, ओके, चाहे वो हमारा लोन का बिजनेस हो, चाहे बैंकिंग बिजनेस हो, वी आर जस्ट एन एग्रीगेटर। तो हम रिस्क में, हम बस ये देखते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ पेपर सोर्स हो रहे हैं वो हम ध्यान रखें, वहां हाँ, पे फ्रॉड नहीं हो, बिल्कुल। डेटा सही हो। और बिकॉज वी मोस्टली इंडिपेंडेंट फॉर द लोन्स, वी हैव ऑलमोस्ट टाई अप विद 15 प्राइवेट बैंक्स एंड एनबीएफसीज। सो मोस्ट ऑफ देम वी हैव टाई अप, सो वी जस्ट ओके, इंश्योर कि भाई एज एन एग्रीगेटर हमारे एंड से ये बिल्कुल। इंश्योरिटी होती है कि डॉक्यूमेंट सही रहे, पेपर सही, सोर्सिंग सही होनी चाहिए, हाँ, and बिल्कुल। the quality is maintained on that level. So we don't ओके, have any risk on our sides, ओके। only till we have a quality sourcing, और वो हम लोग इंटैक्ट करते हैं। वी गॉट अ कंप्लीट ऑपरेशन टीम फॉर इट। ओके। दूसरा सवाल जो आपने नंबर्स का पूछा है कि भाई आपका मार्च का नंबर्स आके, डेफिनेटली वी हैव इम्प्रूव्ड ऑन इट। एंड रही बात जो ओवरऑल बैलेंस शीट है, with taking of Kartik credit, things have changed for us very much. As I said, Kartik credit was a 1 year old company, और हम लोगों ने फरवरी में उसको टेक ओवर कर लिया है। So definitely that's a huge proposition which we have done. Going forward, we have such more plans to take over such एक दो और चीज कंपनीज हैं सिमिलर रिलेटेड। तो हम चाहते हैं कि हम एक बैंडविड्थ को बना के सब्सटैंशियली जो हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं हम उसको मीट कर पाए। बस 6 मंथ्स ऐसा है बीसी बिजनेस में, फाइनेंशियल में नॉर्मली क्या, डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, हार्डकोर रूरल अर्बन एरियाज में जो आप फाइनेंस की इंश्योरेंस जैसे मार्च में नंबर्स अच्छे होते हैं, तो रूरल साइड में वैसा नहीं होता है। यूनिफॉर्मिलिटी बनती है बिकॉज द इनकम पे होता है, जब खेती होती है उसके बाद की होती है, तो वहाँ वैसा कोई सैलरीड क्लास नहीं होता है, या मार्च का वेट कर रहे होते हैं। दैट्स अ टोटल डिफरेंट मार्केट from the urban market. So it's a market which is like almost like similar on the all, ऐसा नहीं फर्क पड़ता है ऑफ सीजन, लेकिन नॉर्मली वो 12 महीना एक जैसा रहता ओके, बिल्कुल। ललित जी, अभी आपने कहा कि आपका बेसिकली एग्रीगेटर मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, तो मुझे बताइए गोइंग फॉरवर्ड अगर अगले 2-3 साल में हमको ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड करना है, तो हमको एक्चुअली इज इट राइट टू से कि हमको अगर थोड़ी सी कस्टमर बेस बढ़ते हैं और हमारी फंडिंग वर्किंग कैपिटल के लिए बढ़ती है, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा? हमको कोई बड़े फंडिंग रिक्वायरमेंट्स तो है नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग कस्टमर्स, और हम बैंक्स और एनबीएफसी को उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ऐसा क्या फैक्टर होगा कि जिससे हमारा बिजनेस अगले 3 साल में, अगर मैं कहूँ कि चलो यहाँ से अगर डबल हो सकता है,
तो व्हाट कैन बी द वेरिएबल विच विल बी रिक्वायर्ड द मोस्ट बाय वेदांत? क्योंकि सर देखिए, आप डायरेक्टली कस्टमर को तो पैसा देते नहीं हो, आप इंटरमीडियरी हो। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग दैट व्हाट इज द वेरिएबल विच कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट? व्हाट इज इट दैट विच कैन help us see a better top line, a better profitability in the next 2 to 3 years? Can the existing staff be enough, और आपको आदमी लोग भी बढ़ाने पड़ेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा क्या वेरिएबल है जिससे हमारा रेवेन्यू अगले 2-3 साल में बढ़ेगा, कंसिडरिंग योर कंपनीज बिजनेस मॉडल? पहला तो है कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज हम बहुत बढ़ाने वाले हैं। जोग्राफिकल बाउंड्रीज, अभी हम एक बाउंड्री में हमने एक पूरे के पूरे मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। हम इस जोग्राफिकल बाउंड्रीज को नॉर्थ ईस्ट में ले जाने वाले हैं। बिहार में हम ऐड ऑन कर रहे हैं, ईस्टर्न यूपी है, उड़ीसा हम शुरू ही कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ है। तो जोग्राफिकल बाउंड्री से इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, दैट विल इम्पैक्ट। सेकेंड, वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स। जैसे हम अभी, आपने मुझसे पूछा कि हम एग्रीगेटर ही रहेंगे, नहीं, हम आने वाले आगे 1-2 साल में को लैंडिंग में जाएंगे और हम खुद का बेस, बिकॉज हम वहां पे जाएंगे। बिकॉज ये अगर सिर्फ एग्रीगेटर से हम बेस बना रहे हैं, हम एक नंबर्स बना रहे हैं, नंबर्स बन जाने के बाद हम डेफिनेटली वी आर इनटू द ऑलरेडी इन डिस्कशंस। तो हम एक बेस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होगा, हम रूरल साइड में काफी काम कर रहे हैं। तो अभी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। द कंपनी इज वेरी सीरियस टू लॉन्च सम प्रोडक्ट्स कीपिंग इन माइंड द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी मार्केटिंग हम करेंगे, प्रोडक्ट्स लेके बाजार में ले जाएंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग विच वी आर वर्किंग ऑन। एंड डेफिनेटली वेरी इन दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली, I'm not saying that going forward next 2-3 years. This we are working on this. There's a separate team working on this. Very shortly we'll have, because that's going to increase a game changer for a Vedant Asset as a company. ओके, ललित जी, अभी आपने कोलैटरल की बात की, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि कोलैटरल में तो सर मार्जिन्स भी थोड़े ज्यादा होते हैं? तो होपफुली कैन वी एज्यूम दैट कैन दिस margin picture get a little bit better boost in the next, say, 2 to 3 years, hopefully, when collaterals and other high margin products come in your portfolio? Definitely yes. Avinash, not 3-4 years. अब मुझे 2 साल का लग रहा है. So the company will be performing very very better in 2 years, like going 2 years onwards only. Okay. So we collateral पे क्या, co-lending वगैरह में क्या है कि बैंकों से टाई अप करके co-lending में definitely the margins are much better, and the top line definitely changes a very bit because of that. Okay. ललित जी, आखिरी सवाल जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली, कि हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आई मीन, हर बिजनेस में रिस्क तो होता है, अभी आप कोविड को छोड़ दीजिए, बट इन योर असेसमेंट व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्क इन आवर बिजनेस? एंड सेकेंडली, सर, हमारे पब्लिक शेयर होल्डर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी तो वेदांत एसेट इज अ लिस्टेड कंपनी, तो आपके हिसाब से अगले 2-3 साल में, इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, हाउ कैन यू रिवॉर्ड देम? ये बातें तो शेयर होल्डर्स ऑलवेज कहते हैं, तो सर इनके बारे में जरा बता दीजिए। हाँ, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ अविनाश जी, कि going forward we are company, we are very very serious about the top line and the bottom line. I am rather thankful people, because we are a very small IPO. We came up too early in last year, only October May. People who have trusted us, who have invested with us, who have stayed with us, I can vouch for them that we are a company thinking down the clock for them. We stand for them, because not in terms of numbers, because हम चाहते हैं कि हम उनको वैल्यू दें। जब उनके सारे एज अ कंपनी वी कैन डिलीवर गुड रिजल्ट्स एंड गुड नंबर्स, एंड सो दैट दे कुड मेक सेंस गोइंग फॉरवर्ड कि उन्होंने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हम जहाँ तक छोटे शहरों में, हमारे आपने रिस्क की बात की, द रिस्क इज दैट वेरी फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इज नॉट अ रिस्क फॉर अस। सो AI इज नॉट अ चेंज, बिकॉज आप बड़े शहरों में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है, कोई मॉडल है, डिस्ट्रप्शन आ गया, कोई टेक्नोलॉजी लेके आता है और वहां पे अचानक से रातों रात चीजें, जैसे आपने देखा होगा, आप डीमैट में ही देख लीजिए, जीरोधा आती है और अचानक से कोविड पीरियड में 2 करोड़ से ऊपर डीमैट अकाउंट चले जाते हैं उसके पास में, दे बिकम द बिगेस्ट डीमैट अकाउंट एंड स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकर रहता है। हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पे पार्टनर्स हैं, रूरल है, ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी है। तो हमें वैसा नहीं लगता कि टेक्नोलॉजिकल कोई डिस्ट्रप्शन बड़ी है। ऑब्वियसली एक कंपनी में बड़ी बड़ी लोग कंपनियां आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, कैपिटल्स लेके आ रही हैं, डेफिनेटली बाहर के लोग आ रहे हैं, बट देन लोकल लेवल का एक फ्लेवर होता है, जो कि हमारी बाउंड्री अभी इस पार्ट में, ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, तो वो एक है। बाकी तो हमें नहीं लगता वैसा कोई टेक्नोलॉजी, सम रेगुलेटरी चेंजेस,
because all this banking and everything is under the purview of RBI guidelines only, and this is what regulatory, अगर regulatory कुछ changes नहीं है तो वैसा कुछ भी नहीं है। और रही बात जहां तक हमारे इन्वेस्टर्स की, तो आई कैन ऑलवेज से वन थिंग वेरी वेरी सीरियस, कि यू हैव सपोर्टेड अस, यू हैव बीन विद अस, वी आर स्टैंड कमिटेड टू यू फॉर नेक्स्ट। आप हमारे साथ जो लोग बने रहते हैं 2-3 साल, दिस कंपनी स्टैंड, दिस इज अ जीरो डेट फ्री कंपनी। आज भी हम अपने ऑपरेशंस को, खर्चे को ऑपरेशन से निकाल के कर रहे हैं। सो वी आर एबल टू जनरेट, हम अपने जो भी खर्चे हो रहे हैं, वी आर एबल टू जनरेट रेवेन्यू एंड टेक आउट। सो वो हमारे लिए रिस्क नहीं है कि हम कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान में या कैपिटल को बहुत डाल के हम काम कर रहे हैं। हम पैसे को लोगों के प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए हम काम कर रहे हैं। एंड दैट्स द रीजन हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग बने रहें, डेफिनेटली वी विल मेक अ ह्यूज सेंस फॉर देम इन टाइम टू कम। एनीवे ललित जी, थैंक यू वेरी मच आपका कीमती समय हमको देने के लिए। एंड फ्रेंड्स, वी हैड अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन टुडे। सो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिए। ललित जी, मेरी तरफ से आपको, आपके पूरे टीम को ऑल द बेस्ट, एंड डेफिनेटली विल कीप इन टच इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू। Thank you, Avinash ji, and thank you to Profit Mart also. Thank you so much.